چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ادونی کی جانب سے ایک یادداشت سب کلکٹر ادونی کو پیش کی گئی۔ یہ یادداشت مرکزی حکومت کی جانب سے لائی گئی وقف بورڈ ترمیمی بل کی مخالفت میں پیش کی گئی۔ اس موقع پر مختلف پارٹیوں اور تنظیموں کے قائدین نے میڈیا کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قائدین نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل کا لانا ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ قائدین نے بتایا کہ وقف بورڈ میں موجود جائیدادیں مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں جو بزرگوں نے مساجد اور مدارس وغیرہ کے لیے اپنی جانب سے وقف کیے ہیں۔ ان جائیدادوں پر صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ وقف بورڈ میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی حکومت اس طرح کے قانون بنا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف لائے جانے والے قوانین کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے خلاف پرزور احتجاج ہندوستان بھر میں کیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل کو واپس لے۔ ساتھ ہی ساتھ مرکزی حکومت کے اتحادی جماعتیں ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل کی پوری طرح مخالفت کریں اور پارلیمنٹ میں اس بل کو پاس ہونے نہ دیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر ہندوستان بھر میں اس بل کی مخالفت میں پرزور احتجاج کیے جائیں گے۔ اس موقع پر نور احمد، خادر بادشاہ، صدام حسین، خالد محی الدین نظامی صاحب ناظم جماعت نظامیہ ادونی، قاضی محمد طاہر مصباحی صاحب ادونی، خطیب محمد جنید ہاشمی صاحب ادونی، نور احمد کانگریس پارٹی، فیاض بادشاہ بہوجن سماج پارٹی، یاسین بادشاہ ابو بکر وغیرہ شریک رہے۔ ఈ యొక్క వక్ఫ్ బోర్డు సవరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ముస్లింలు కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు సెక్యులరిస్టులు, అదేవిధంగా అంబేద్కరిస్టులు, బౌద్ధవాదులందరూ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే। అందులో భాగంగా ఈరోజు మన ఈ యొక్క బిల్లు, ఈ యొక్క అసమర్థమైన బిల్లు, దేశాన్ని చిచ్చురగిలించే బిల్లు, దేశ సార్వభౌమత్వం దెబ్బతీసే బిల్లు, దీన్ని వ్యతిరేకించాలంటే ఒకటే మార్గం పార్లమెంట్ దీన్ని ఓడించడమే। ఈ ఓడించే శక్తి ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారికి, అదేవిధంగా బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ గారికి ఉంది కాబట్టి మరి వారిద్దరూ ఖచ్చితంగా ఈ బిల్లును పార్లమెంట్ ఓడించాలని, అదేవిధంగా తమ అసెంబ్లీలో దీనికి వ్యతిరేకంగా బిల్లు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఆల్రెడీ ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫున ఈరోజు ఇక్కడ సబ్ కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది। సో పెద్దలు ఒక్కొక్కరుగా ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాము। ముందుగా మన హజరత్ గారు మాట్లాడాలని కోరుకుంటాను సార్। 2 మినిట్లు। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से बीजेपी की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी NRC तो कभी CAA और कभी जो है त्रिपुल तलाक। अब जो है पार्लियामेंट में जो है वक्फ तरमीमी बिल लाई है। ये मुसलमानों की जायदादों को हड़प करने के लिए एक नया जो है तरीका है। हमारे बाप दादाओं ने जो है अपनी जमीनें जायदादें जो है मसाजिद के लिए, मदरसों के लिए, यतीम खानों के लिए, खानखाहों के लिए सवाब की नीयत से वक्फ की थी। अब इन जायदादों को हुकूमत जो है अपनी तरफ जो है खींचना चाहती है। एक जायदाद हड़प करने का एक नया तरीका है। तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो है अपनी मुजवज़ा वक्फ तरमीमी जो है तरमीमी बिल वापस ले लें, और वापस नहीं देगी तो हम पूरे मुल्क भर में जो है तहरीक चलाएंगे और जो है एहतजाज करेंगे। और हम इस बिल की खुलकर पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जो है इस बिल को वापस ले लें। नहीं, जब तक वापस नहीं ले लेगी तब तक जो हम पूरा मुल्क भर में जो है तहरीक चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। और इसी सिलसिले में आज हम शहर अदोनी के तमाम अमायदीन शहर, दानिशवरान शहर, उलमा कराम जो है यहाँ जमा हुए हैं। सब कलेक्टर साहब के जरिए जो है मेमोरेंडम देने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं और हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि इस मुजवज़ा वक्फ तरमीमी बिल को जो है फौरन वापस किया जाए। इसी के साथ मैं जो है मेरा नाम खालिद निजामी है।
नाज़रीन जमात निज़ामिया दोनी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं यहाँ पर जो हम लोग हाजिर हुए हैं शहर अदूनी के बहुत सारे हमारे जिम्मेदारान और मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान और कई अमायदीन शहर, हमारे आने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान की वक्फ की ज़मीनों की हिफाजत जो हमारा मकसद है, इसी मकसद के लिए यहाँ पर आना हुआ है ताकि आज कलेक्टर सब कलेक्टर साहब को हमारी जानिब से मेमोरेंडम एक याददाश्त पेश की जाए और यही गुजारिश है कि हमारी जो वक्फ की ज़मीनें एक ज़माने दराज से सदियों से जो मुसलमानों की वक्फ ज़मीन के तौर पर देखी गई है, इसे उसी तरह जिससे देखा जाए। कोई नया बिल ला करके इसमें तरमीम करके हमारी जायदादों को, हमारी जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानकाह हैं, दरगाहें, यतीम खाने, हमारे ईदगाह, कब्रिस्तान, इन तमाम चीज़ों के लिए ये आने वाला नया बिल एक खतरे के तौर पर हमें महसूस होता है। इसलिए हम यही हुकूमत आंध्र प्रदेश से और ख़ास करके उसके ज़रिए हुकूमत हिंद से ये गुजारिश करते हैं कि इस तरह की वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पास होने बिल्कुल भी ना दिया जाए और जैसा पहले चल रहा था उसी तरह से हमारी वक्फ की ज़मीनों को हमारे हवाले और हमारे सुपुर्द रहने दिया जाए। इसी में जो है तमाम हिंदुस्तान की एकता और तमाम मुसलमानों की जो है हिफाजत है। जैसा कि दूसरी कम्युनिटीज़ की अपनी अपनी जो है इनकी संस्था होती है, उनकी ज़मीनें होती है, उनकी अराजी होती है, उसी तरह से वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों के बाप दादा, मुसलमानों के पुरखों ने जो जमा करके जो जमीन हमारे लिए रखी है, ये हमारी मिल्ली जो है जमीन है, ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है मुसलमानों की। इसको जो है किसी नए बिल के जरिए गलत इस्तेमाल करने का जो है हमें अंदेशा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इस तरमीमी बिल को जो है रिजेक्ट किया जाए, इसको कंडम किया जाए, इसे पार्लियामेंट में पास होने न दिया जाए। बस यही जो है हमारे तमाम शहर अदूनी के मुसलमानों का एक मुद्दा, एक मकसद है और हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जमीनों की खास तौर पे हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। हमारा आने का मकसद जो बिल के ताल्लुक से है, ये बिल हमारे मुसलमानों के लिए ठेस पहुंचाने वाली बिल है, जो वक्फ बिल है, जो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिशें चल रहे हैं। ये साजिश नाकाम होना चाहिए। हर जगह जहां जहां फोटोज कर रहे हैं, जहां जहां बोल रहे हैं, इसको इस बिल को रद्द करना चाहिए, क्योंकि खलीफे अव्वल जो हमारे मदीना मुनव्वरा हैं, जब बनने के बाद मुसलमानों के लिए वक्फ किया गया, उस चीज को मुसलमानों के लिए हर चीज वक्फ है, वो चीज हमारे लिए आसानी होना चाहिए। और जो कोशिशें हम लोग मुसलमान लोग कर रहे हैं, उन कोशिशों को कामयाबी होना चाहिए। बरकतों से रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है। इस महीने के सदक़े से हमारे जायज मन्नतों को, मुरादों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल अता फरमाए। जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट में दाखिल हुई, इसको बाहर जाहिर नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन के सामने मुस्लिम वोटर्स का अलायंस पार्टी को इफेक्ट पड़ता है बोलकर इसको सामने नहीं लाए। इलेक्शन के बाद जैसे ही इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद इसको इलेक्शन में पार्लियामेंट में बिल पास कर रहे हैं। उसमें बिल के सपोर्ट के टाइम पर उस वक्त YSRCP और तेलुगुदेशम पार्टी हमारे स्टेट से सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को, लेकिन इलेक्शन के सामने बताया नहीं है। आज हम नीतीश कुमार साहब और चंद्रबाबू नायडू साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे AP असेंबली में इस बिल को रिजेक्ट करें। जिस तरह तेलंगाना में और कर्नाटका में और तमिलनाडु में जिस तरह कांग्रेस पार्टी हुकूमत ने इस बिल को रिजेक्ट किया है, उसी तरह हम आंध्र प्रदेश में भी इस बिल को रिजेक्ट करने का आधुनिक जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से डिमांड है। हम सब आधुनिक JAC और आधुनिक जितने भी तमाम पार्टी वाले हैं, सब मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा डिमांड ये है कि जल्द से हमारी इस बिल को AP असेंबली में रिजेक्ट किया जाए। जय हिंद, जय कांग्रेस। हाजिरीन इकराम, आज यहाँ पर जमा होने का मकसद जॉइंट एक्शन कमेटी आधुनिक की जानिब से एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में जो इस बार हुकूमत, जो मरकजी हुकूमत ने जो नया प्लान रखा है, जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज है उसे जब्त करने के बारे में जो नया कानून पास करने वाली है, इससे हम कंडेम करते हैं कि वो बिल पास न किया जाए। और दूसरी बात, हमारी खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्य चंद्रबाबू नायडू साहब और इसी तरह
नीतीश कुमार से हमारी गुजारिश है कि वो लोग पार्लियामेंट में इस बिल के खिलाफ वोट न डालें, क्योंकि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की मिल्कियत है। आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ना मुसलमानों की मिल्कियत है, जो उनके जो काले कानून, जो गंदे नजर जो हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे जो पड़ी है, हम उसे कतई हमें उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो हमारी गुजारिश है कि सेंट्रल हुकूमत जनाब नरेंद्र मोदी साहब हो या अमित शाह जी हो, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि शायद वो अपना नारा भूल चुके हैं कि अब की बार 400 पार का नारा शायद भूल चुके हैं। उनको लोगों ने बता दिया है कि इस बार का रिजल्ट उनको तो 2 बैसाखियों के जरिए उन्होंने आज हुकूमत चला रहे हैं। एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, दूसरे बैसाखी है और नीतीश कुमार हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर। इनको समझना चाहिए कि लोगों ने उनको कितना एक्सेप्ट किया है करके। हमारी उनसे गुजारिश है कि इस तरह से काले कानून ना लाए, पार्लियामेंट में इस तरह से बिल पास ना करें। अगर इस तरह से उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की तो इंशाअल्लाह हमें ऐलान करते हैं कि हम रोडों पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे। तमाम मसाजिद के लोगों या मदारिस के लोगों या खानगाह के लोगों, जितने भी लोग हैं उनको हम लोग अवेयरनेस दिलाएंगे। शायद आप ये समझ रहे होंगे पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट आता रहा तो हमारी सड़क हमारी है, संसद दोबारा है तो सड़क हमारी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। अगर आप लोग इसी तरह करते रहेंगे, हमारे खिलाफ बिल पास करते रहेंगे, चाहे वो एनआरसी का हो, चाहे वो सीए का हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे बिल के लिए हमें हमेशा आगे रहेंगे। आधुनिक मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के जरिए हम लोग पैगाम देते हैं कि आप लोगों को कि फौरन इस बिल को होने का आप वोट ना दें। चंद्रबाबू नायडू साहब से गुजारिश है और नीतीश कुमार से भी हमारी गुजारिश है कि इसके बारे में वोट ना देकर मुसलमानों को सहमति दे। अस्सलाम वालेकुम। आज जॉइंट एक्शन कमेटी जो सही रास्ता जो मेमोरेंडम देने का आज प्रोग्राम रखे हैं। आज मैं हुकूमत से एक हमारा आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादातर मुसलमान आज पीछे चले गए हैं और हर मस्जिद के एक खेता है तो बोलकर जमीना है और वफ उसके जमीना का रिकॉर्ड वफ में रहता। वफ जो बिल इन्होंने जो कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अदर कास्ट के कलेक्टर डिलेक्टर को उसमें एंट्री करना है तो बोलकर जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और आधुनी से बिलखुसूस हमारे पूरे आधुनी से हमें गुजारिश करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को, आज तुम्हें जो खत्म करना चाह रहे हैं अल्लाह के जमीनों को खत्म करना चाह रहे हैं तुम्हें और पूरे मुसलमानों को खत्म करने की चाहते हैं। तुम्हारी जो मंसूबा है उसका मंसूबा जो तुमने बीजेपी गवर्नमेंट आज इंशाअल्लाह उसका ऊपर वाले का जो मार पड़ेगा तुम्हारी पार्टी की इंशाअल्लाह नहीं रही है। इंशाअल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से हमारी जो अल्लाह के जमीनों को खत्म कर रही है बीजेपी पार्टी वक्फ बिल को जो ला रही है वक्फ बिल के खिलाफ आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू का अहम रोल है। उन्हें नहीं गया तो बोले तो उसकी गवर्नमेंट गिरती बीजेपी की और सही बोले तो मुसलमानों को उड़ाने को टीडीपी गवर्नमेंट अब जो मुसलमान को इंसाफ करती है। जगह पवन कल्याण भी बोला था अगर मुसलमानों को कुछ तो अगर तकलीफ होती तो बीजेपी गवर्नमेंट से वापस सपोर्ट वापस ले दो। अब इतना तकलीफ दे रही है जो वक्फ बिल को जो ला रही है मुसलमानों उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो इनको नजर नहीं आ रहा क्या चंद्रबाबू नायडू को भी रहने पवन कल्याण को भी रहने। मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, देखो इन्हें वक्त को खत्म करना चाह रही तो बोले तो अल्लाह के जमीनों को खत्म कर रही हो, अल्लाह के घरों को खत्म कर रही सभा बड़ी तुम्हें रिकॉर्ड ना करे बोले तो तुम्हारा रिकॉर्ड इसमें ना करे बोले तो हमें कहाँ से लगाना। आज हर मसीदा में एक घर में हमें लाखों रुपए का मसीदा बन रहे हर घर में उसका रिकॉर्ड हमें बना नहीं सक रहे। इस तरह से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ हमारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं बहुजन समाज पार्टी के इंचार्ज की तरफ से आज सबको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ भाई ये मामूली बात नहीं है। इन्हें बिल जो वक्त बिल नहीं है वो बिल का सपोर्ट करते क़यामत तक इन्हें भी चंद्रबाबू नायडू भी उसका जवाब देना पड़ता, पवन कल्याण भी उसका जवाब देना है, नीतीश कुमार भी उसका जवाब देना पड़ता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ पूरे मुसलमान एक हो गए। इनको ऐसा सबक दो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट बार में नेक्स्ट बार खतरा उठाने का रहा तो आजाद ऐसा सबक दोगे तो बिल्कुल मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जमा होने का मकसद ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पास करने, असेंबली में पास करने जा रही है, तो हम इसे ये बोलना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जब तूने काले कानून लाए हैं, मुसलमान उसके ऊपर एहतजाज कर उस चीज को रुकाया है। तो जैसा एनआरसी सीए में आपने जो काले कानून लाए थे, आप बोले थे अमित शाह जी ने क्या बोले थे, हम एक कदम भी पीछे नहीं लेंगे बोलते। इसी तरह आप भी फिर भी अभी जो बिल लाए हैं उसके खिलाफ भी एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। क्यों बोले तो एसडीपी का डिमांड है और आधुनिक जो मुसलमानों का भी डिमांड है, सारे मुसलमानों को डिमांड है। तुम क्यों इतने काले कानून ला रहे हो? अगर से करना है तो फिर डेवलपमेंट की बात करो। डेवलपमेंट की बात नहीं है आपकी, जो भी है सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट। क्यों बोले तो मुसलमान ही सबसे ज्यादा अपोजिशन है और आपके खिलाफ भी है। क्यों बोले तो आपको मुसलमान को देखे बोले तो आपकी पार्टी चलाई जा रही है, इसलिए तो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और 14 पॉइंट्स लेकर के आप क्या करना चाह रहे हैं? आप 14 पॉइंट हमारे हुकूक छीनना चाह रहे हैं, हमारी मस्जिद, हमारे दरगाह छीनना चाह रहे हैं। अगर से आप ये बिल को पास करेंगे, सारे मुसलमानों ने जागना है। क्यों बोले तो आज बीजेपी गवर्नमेंट हमारे खबरस्तानों को, दरगाहों को, खानगाहों को, मस्जिदों को आने वाले दिनों में हम 6 कदम भी जगह भी नहीं मिलेगी खबरस्तान में दफन होने के लिए। ये चीज को हमें सारे मुसलमान एहतियात बरतना है और रोड पर आना है। बस अस्सलाम वालेकुम।